एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते हैं। बादाम दूध पी लो बेटा, मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है। इसलिए वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। This is the weightage. Can you just look at this, please? Just look at this. This can be a total rank changing. It can actually be like, it can be a life changing lecture. 48 marks. Can you just look at the marks? Don't look at anything else. I just want you to focus on the marks. Can you see 48 marks there? Yes, everybody, can you just see 48 marks there? 4, 8, 48. This is how important this chapter is. Again and again, I'm saying I'm working live on a Sunday. It is all for the family of we Biotonians. It's only for you that Vedantu is putting in so much of effort. So it's my humble request to you, please. This is how important this chapter is. उस चैप्टर में भी मैं आपको वो सारी चीजें करवा दूंगी जो अनवांटेड नहीं है, वो सारी चीजें जिनमें से डायरेक्ट एमसीक्यूज आएंगे. डोंट गो एनीवेयर, स्टे कनेक्टेड. लेट्स स्टार्ट today's most amazing class. Click a snapshot. Click a direct snapshot. Direct MCQs will come from this. Direct snapshot on your screens, please. Come on, everybody, click a snapshot. Yes. So let's come to the human heart, which is the size of a fist. We're talking about the human heart, which is the size of a closed fist. The size and location of the human heart. The size of the human heart is around 12 centimeters long, 9 centimeters wide at the broadest part, right? 9 centimeters wide at the broadest part. This part is called the apex of the heart. This part is called the apex of the heart, right? देखिए बच्चों, हम सिर्फ relevant चीजें करेंगे. मुझे ये पता है कि ऑरिकल वेंट्रिकल आपको पता है, तो वो चीजें जो रिपीटेड है, नॉर्मल है, उसको हम स्लोली 3-4 दिन में नहीं करेंगे. दिस इज अ सुपर स्प्रिंट, लाइफ चेंजिंग, रैंक चेंजिंग, मार्क्स चेंजिंग स्प्रिंट. सो वॉट एवर आई एम मार्किंग इज इंपॉर्टेंट, राइट? इट इज 6 centimeters thick. Where is the location of the heart? The location of the heart is in the middle of the chest with the apex pointed towards the left side. Write this down. जो apex है वो left side की तरफ point करता है, पर heart chest के बिल्कुल middle में होता है. So mediastinum is a direct MCQ question. Mediastinum direct MCQ question है. Menti होगा, sum होगा, pay attention. Right? Mediastinum. It is on the diaphragm. ये diaphragm पे rest करता है. This is your mediastinum. Can you see the mediastinum? क्योंकि heart is shifted slightly from the apex towards the left side, इसीलिए left side of the lung पे, left side of the lungs, ये lungs है, lungs में left side में एक notch होती है. That notch is called the cardiac notch. तो cardiac notch is a part of the lungs. Cardiac notch is not a part of the heart, it is a part of the lungs. Cardiac notch. Pericardium direct MCQ questions आते हैं. The covering of the heart is called the pericardium, MCQ question. Cardiac notch, MCQ question. Mediastinum is the portion of the heart, MCQ question. On one slide I can show you at least 12 to 15 MCQ questions. Done? There are 3 pericardiums, fibrous pericardium, serous pericardium. थर्ड का मतलब है दोनों के बीच की स्पेस. थर्ड का मतलब है दोनों के बीच की स्पेस where there is pericardial fluid, just like pleural fluid, which reduces friction. What does it reduce? It reduces friction. Right? जब हार्ट बीट करता है, it reduces friction. Pericardium outer और inner के नाम पे there could be direct MCQ questions. Right? There are direct MCQ questions. Crocodile is the only reptile which has got a 4-chambered heart. Otherwise, everybody has a 3-chambered heart. Human beings, mammalia and aves have a 4-chambered heart. 2 auricles on top and 2 ventricles below. They are completely separated from each other. 2 auricles के बीच का जो separation होता है, partition होता है, उसको interatrial septum कहते हैं. 2 ventricles के बीच का partition interventricular septum कहलाता है.
4 चेंबर्स, अपर चेंबर्स आर कॉल्ड ऑरिकल्स, लोअर चेंबर्स को कहते हैं वेंट्रिकल्स। जो भी चीज अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड लेकर जाए उसको आर्टरी कहते हैं। दैट इज वाई पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हार्ट से खून लेकर लंग्स तक जा रही है। अवे फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड आर्टरी। एओर्टा एक आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी एक आर्टरी है, बिकॉज दे आर टेकिंग अवे फ्रॉम द heart. Aorta carries oxygenated blood. Pulmonary artery एक लौती आर्टरी है which carries deoxygenated blood. Right? Veins carry blood towards the heart. So superior vena cava, inferior vena cava, and pulmonary veins है. Superior vena cava is bringing deoxygenated blood from the top part of the body. Inferior vena cava is bringing deoxygenated blood from the lower half of the body. इसीलिए उसको valve की जरूरत पड़ती है. Aortic valve, tricuspid valve is on the right side between right auricle, right ventricle. Pulmonary valve is on the pulmonary artery. Aortic valve or the semilunar valve aorta के ऊपर होता है. Bicuspid valve is on the left side of the heart. Walls of the heart पे MCQ आना completely निश्चित है. 100% one MCQ can come from the walls of the heart. Yes, everybody. Epicardium is the outer layer of the heart which is made up of mesothelium. ये एम्स का भी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर. मायोकार्डियम इज द मसल ऑफ द हार्ट. मायो मीन्स मसल्स. मायोमेट्रियम इज द मसल ऑफ द यूटरस. मायोकार्डियम इज द मसल ऑफ द हार्ट विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मसल. मायोकार्डियम के अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क्स होंगी. सो द कार्डियक मसल इज अ मसल विच इज इन बिटवीन द बताइए, इन बिटवीन द स्केलेटल एंड द स्मूथ मसल, उसमें इंटरकैलेटेड डिस्क्स होती हैं. एंडोकार्डियम इज द इनर लेयर, अ थिन लेयर ऑफ एंडोथीलियम. एटलीस्ट 10 टाइम्स प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, एटलीस्ट 10 टाइम्स. सबसे अंदर की जो लेयर होती है एंडोकार्डियम विच इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ ब्लड वेसल. कैपिलरी की लाइनिंग, सिंगल लेयर ऑफ ब्लड वेसल क्या कहलाती है? डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन. एंडोथीलियम, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन. एंडोकार्डियम किसकी बनी है? डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, लिखिए. मायोकार्डियम इज द मसल ऑफ द हार्ट, राइट. एपिकार्डियम मीसोथीलियम की बनी है. एम्स का क्वेश्चन है, पर यह क्वेश्चन तो कम से कम 10 बार आ चुका है. एंडोकार्डियम किसकी बनी है? एनी डाउट्स? राइट. सो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे. अब ये क्या है आपका? ट्राइकस्पिड. ये क्या है? बाइकस्पिड. ये क्या है? एओर्टिक. यहां क्या होगा? पल्मोनरी. ये मसल क्या है? मायोकार्डियम. ये एरिया क्या है? कार्डियक नॉच. कार्डियक नॉच का एपेक्स किस तरफ पॉइंटेड होता है? टुवर्ड्स द कार्डियक notch. Away from the heart, arteries. Towards the heart, veins. Any doubts? एंडोथीलियम पे 100% क्वेश्चन आएगा. ये है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. द मसल्स ऑफ द हार्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैपिलरी मसल्स. ये क्वेश्चन कम से कम 5 या 6 बार आ चुका है. क्या कहते हैं इनको? पैपिलरी मसल्स. कम से कम 5 बार क्वेश्चन आ चुका है. व्हाट आर द मसल्स ऑफ द हार्ट कॉल्ड? पैपिलरी मसल्स. आपको ये व्हाइट कलर के फाइबर दिख रहे हैं जिन्होंने वॉल्व को पकड़ा हुआ है? बताइए. कैन यू सी दिस व्हाइट कलर फाइबर्स जिन्होंने वाल्व को पकड़ा हुआ है? बताइए, खुद ही बताइए. कैन यू सी दिस व्हाइट कलर फाइबर्स जिन्होंने वाल्व को पकड़ा हुआ है? देखिए यहां पर भी हैं, राइट. इनको कहते हैं कॉर्डे टेंडिने. दे होल्ड द वाल्व. कॉर्डे टेंडिने कम से कम 5 या 6 बार एमसीक्यू आ चुका है. कॉर्डे टेंडिने. वेन्स कितनी होती हैं? देयर आर 4 पल्मोनरी वेन्स और 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स. सबसे लार्जेस्ट ट्रंक कौन सा होता है? लार्जेस्ट ट्रंक होता है एओर्टा. एओर्टा से निकलता है कैरोटिड आर्टरी. कौन सी आर्टरी निकलती है? कैरोटिड आर्टरी. ये भी कम से कम 5 बार एमसीक्यू आ चुका है. 5 बार एमसीक्यू आ चुका है. पल्मोनरी वेन्स का नंबर आ चुका है. सो ऑन दिस वन चार्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट से जितने एमसीक्यूज आते हैं मैंने आपको करवा दिया है. रिविजन इसी तरह होना चाहिए. नॉट दैट कि हम डिटेल में पूरे 5-5, 10-10 पेज पढ़ रहे हैं, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा. सो विद दैट आई एम गोइंग टू मूव अहेड टू सम अमेजिंग मोर स्लाइड्स. Stay tuned with us.
So this is the structure of the heart. I have already explained. Now I'm going to be talking about ribs. Right? Extra information से ये class भरी हुई है. I'm going to be talking about ribs. Right, everybody? Very, very, very important. Please pay attention to what I'm saying. So the heart is protected in a structure which is called the thoracic cage. इस पे MCQs आते हैं. Heart बहुत well protected होता है. किस एरिया पे protected होता है? एक पार्ट होता है जिसको हम thoracic cage कहते हैं. thoracic cage ribs का बना है. फ्रंट पोर्शन ऑफ द thoracic cage में sternum होता है. sternum फ्रंट में. बैक पोर्शन ऑफ द thoracic cage में vertebral column होता है और साइड पोर्शन ऑफ द thoracic cage में ribs होता है. फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स ट्रू रिब्स कहलाते हैं क्योंकि वो आगे स्टर्नम पे लगे होते हैं और पीछे बैकबोन पे लगे होते हैं. यस, 8, 9 और 10 फॉल्स रिब्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? फॉल्स रिब्स. और 11 और 12 जो होते हैं, राइट, इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. फ्लोटिंग रिब्स क्योंकि वो सामने किसी चीज पे अटैच नहीं होते, वो सिर्फ किडनी की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं. राइट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका पेरिकार्डियम है, बीच का एरिया वेर यू हैव द हार्ट एंड यू very nicely protected the heart. Any doubts? Can you see there will also be blood vessels to supply the heart. Heart को खुद भी blood चाहिए. There has to be blood supplied to the heart, right? So the blood vessels which are supplied to the heart, the blood vessels which are supplied to the heart are called as coronary blood vessels. Coronary blood vessels. एओर्टा की जो पहली ब्रांच होती है, जैसे ही एओर्टा निकलता है, एओर्टा की जो पहली ब्रांच होती है वो कोरोनरी ब्लड वेसल्स की होती है. Any doubts? Right, everybody? चलिए. So with this we are going to be moving ahead. Right? अब आ जाइए. इससे पहले कि मैं बता दूं मैं आपको क्या क्या बताया है, मैं रिवाइज कर देती हूं जिस पे MCQs आते हैं. So we've already done the muscles of the heart जिस पे MCQs आते हैं. We've done the chambers of the heart जिस पे MCQs आते हैं. We have done the valves of the heart जिस पे MCQs आते हैं. We have done the myocardium, epicardium, endocardium, all those parts of the heart, right? We have done chordae, tendineae. इस पे तो बहुत MCQs आते हैं. देख लीजिए ये सारी चीजें आपने अपने नोट्स में लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है. We've done the difference between pulmonary artery and pulmonary veins. Right, basically, you know, oxygenated, deoxygenated, away from the heart to the heart, आपको क्लियर है. इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और एओर्टा से क्या निकलता है? आई टोल्ड यू, एओर्टा से कैरोटिड आर्टरी निकलता है. इसके अलावा पेरिकार्डियम पे क्वेश्चंस आते हैं और रिब्स पे क्वेश्चंस आते हैं. ये सारी चीजें आई थिंक आप सबको मक्खन क्लियर है. यस एवरीबडी, कलर में अभी चेंज कर लेती हूं. डन? Yes, everybody? Understood? Yes? चलिए. So let us move ahead. Now let's come to pericardium. And जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों को डाउट्स आ रहे हैं. डोंट वरी एट ऑल. डाउट्स लिख लीजिए. मैंने आपको क्या बोला है कि वी विल डू रेगुलर डाउट सॉल्विंग. कल के इंडक्शन क्लास में मैंने बोला था कि नहीं बोला था कि रेगुलर डाउट सॉल्विंग हम करेंगे. यस और नो? डिड आई टेल यू कि हम रेगुलर डाउट सॉल्विंग करेंगे? यस. तो क्योंकि हम रेगुलर डाउट सॉल्विंग करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए. जितने भी डाउट्स आपको आ रहे हैं, हम नेक्स्ट लाइव डाउट सेशन लूंगी. 1-1 घंटे का लाइव डाउट सेशन लिया जाएगा. आपके सारे डाउट्स हैंडल किए जाएंगे. पहले अभी आप पढ़ लीजिए. व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इज दैट यू स्टडी. इसके अलावा आपके जितने डाउट्स बनेंगे, वी विल सिट टुगेदर एंड डू ऑल द डाउट्स. राइट? चलिए. सो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं बता रही हूं. पेरिकार्डियम की जो आउटर लेयर होती है, देखो बेटा, वही क्वेश्चंस अगर आपने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं तो आपको पता होगा वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं. सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं. सो पेरिकार्डियम इज द आउटर लेयर. इट इज योर outer layer. Is that clear? Parietal pericardium, right? And then the visceral pericardium. Correct everybody? Right? Endocardium देखिए. Endocardium is your inner layer, right? Fibrous is बाहर का layer. ये इनका काम क्या होता है? These layers, the pericardiums are very tough. They are very tough. They are very inelastic. इनको इलास्टिक मत लिखिएगा, ये सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक करते हैं बच्चे. They are inelastic.
राइट, दे आर इन इलास्टिक। डन एलिंगॉन। तो ये बहुत इन इलास्टिक होते हैं, तो क्योंकि ये इन इलास्टिक होते हैं, ये हार्ट का शेप और हार्ट का जो साइज है वो मेंटेन करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? मेंटेन। मायोकार्डियम हेल्प्स इन बीटिंग। दिस इज द मसल विच विल जनरेट द बीटिंग ऑफ द हार्ट। आपको यह भी पता है दैट ह्यूमन हार्ट इज ऑटोरिदमिक, मतलब ह्यूमन हार्ट के पास एक एसए नोड होगा, एक एवी नोड होगा, एक बंडल ऑफ हिज होगा और एक पुरकिंजे फाइबर्स होगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्लीज पे अटेंशन। एसए नोड विल जनरेट द इंपल्स। एसए नोड कहां पर होता है? जहां पर सुपीरियर वीना केवा एंटर कर रही है, लिखिए इस चीज को, जहां पर सुपीरियर वीना केवा एंटर कर रही है वहां पर एसए नोड होगा, उसके नीचे होगा एवी नोड। एवी नोड कहां पर होगा? एवी नोड वहां पर होगा जहां पर ऑरिकल और वेंट्रिकल मैच कर रहे हैं। जहां पर ऑरिकल और वेंट्रिकल मैच कर रहे हैं वहां होगा एवी नोड। एवी नोड के पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, दोनों के पास मैं लिख के बता देती हूं आपको, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में बंडल ऑफ हिज होगा। राइट, तो आपका एसए नोड होगा इधर, एवी नोड होगा इधर, इधर होंगे बंडल ऑफ हिज और फाइनली पुरकिंजे फाइबर्स। ये हार्ट बीट को जनरेट करते हैं। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर्स। ह्यूमन हार्ट इज ऑटोरिदमिक। ऑब्वियसली ये दो नर्व्स का मैं नाम लिख रही हूं, वेगस और स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। एमसीक्यू में कम से कम 15 बार पूछा गया है, एटलीस्ट 15 टाइम्स इट्स बीन आस्क्ड इन एमसीक्यूज। ये दोनों हार्ट बीट को रेगुलेट करने में हेल्प कर सकते हैं। दे कैन हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट, बट द एसए एंड द एवी नोड आर द वंस विच विल generate. It is autorhythmic, myogenic. It is not neurogenic. Human heart is myogenic. So myo means muscle. That is why myocardium and myogenic. Any doubts? Anything that you have not been able to understand? Please tell me. It is autorhythmic and myogenic. चलिए, हमें आज नर्वस सिस्टम भी करना है, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। राइट एट्रियम पे आ जाइए आप, ये जल्दी से कर लेते हैं। राइट एट्रियम की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, स्मॉल इन साइज होती हैं एंड दे रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आएगा। ये है आपके वाल्व्स की वजह से ब्लड जो है वो जाएगा आपके राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से निकलेगी आपकी पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स पर लेकर जाएगी। लंग्स में डिफ्यूजन हुआ है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आया हुआ है, सो द ऑक्सीजन विल कम इनसाइड द ब्लड। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल टर्न इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की वॉल में भी एंडोथीलियम होता है। देन द ब्लड विल गो टू द लेफ्ट एट्रियम विच इज स्मॉलर इन साइज एंड फाइनली टू द लेफ्ट वेंट्रिकल which is the biggest and the largest. राइट, लार्ज है, सबसे थिक वॉल है क्योंकि इसको हर जगह ब्लड को पंप करना है। इट हैज टू पंप द ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। डन? एनी डाउट्स? राइट, ये तो सबको आता ही है। दिस इज वेरी 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 सिंपल। राइट, अब आ जाइए आप ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट पे। किस पे आ जाइए आप? ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट। कैन यू सी दिस एवरीबडी? एनी डाउट्स? कंट्रोल्ड बाय मसल्स एज शेषना राठी इज सेइंग एंड नॉट बाय। राइट, ये थोड़ा सा यहां क्या है? सुपीरियर वीना केवा, राइट एट्रियम, राइट पल्मोनरी वेन, इंफीरियर वीना केवा। डन? यस एवरीबडी। सो सुपीरियर वीना केवा जो है इट इज अ लार्ज वेन। वेन्स है, प्लीज गलती मत करिएगा, इट इज अ वेन। कैन यू सी दिस? दिस इज सुपीरियर, मैं लिख देती हूं, दिस इज राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी वेन्स एंड इंफीरियर। एनी डाउट्स? Any doubts? I think this is very simple. Superior vena cava is a vein. Superior और inferior vena cava veins हैं. Superior vena cava upper part of the body से blood लेकर आ रही है. Inferior vena cava lower part of the body से blood लेकर आ रही है. Right pulmonary artery carries deoxygenated blood from heart to right lung. राइट पल्मोनरी और वेन्स क्या कैरी करती हैं? वेन्स कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उल्टा है, मैंने अभी समझाया था। राइट, एंड एओर्टा इज योर लार्जेस्ट आर्टरी, कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। लंग्स में है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। डन एवरीबडी?
राइट. सो पल्मोनरी आर्टरी कितनी है? पल्मोनरी आर्टरी दो, एक जो जा रही है आगे जाके दो में बढ़ जाएगी. राइट लंग की अलग, लेफ्ट लंग की अलग. और पल्मोनरी वेन्स कितनी है? 2 पेयर्स. 2 पेयर्स. पल्मोनरी वेन्स कितनी है? वेन्स 2 पेयर्स. टोटल कितनी है? 4. कहां पे एंटर कर रही है? यस, कहां पे एंटर कर रही है? दे आर एंटरिंग इनसाइड द लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम. Right, let's come to the valves. So we have the aortic valve, right? See, all valves are there to prevent any backflow. Backflow नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास valves हैं. Is that clear? There should be no backflow of the blood, therefore we have valves. So ये है आपका right atrium. मैं black pen use कर लेती हूँ if you want it. ये रहा आपका राइट वेंट्रिकल. इनके बीच में बैकफ्लो नहीं होना चाहिए. यू हैव द ट्राइकास्पिड वाल्व. ये रहा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल. इनके बीच में बैकफ्लो नहीं होना चाहिए. यू हैव द बाइकास्पिड वाल्व. पल्मोनरी आर्टरी में बैकफ्लो नहीं होना चाहिए. यू हैव द पल्मोनरी वाल्व. राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड गया है, वापस राइट वेंट्रिकल में नहीं आना चाहिए. यू हैव द पल्मोनरी वाल्व. लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड गया है, वापस एओर्टा से नहीं आना चाहिए. You have the aortic valve. And valves को नीचे से पकड़ने के लिए कौन है ये? I've told you before also, this is at least 5 times MCQ question. I've told you before. ये कौन है जिन्होंने valves को नीचे से पकड़ रखा है? They are nothing but the chordae tendineae. Chordae tendineae. Is that clear? Bicuspid is also called the mitral valve. Right? So you have the tricuspid, bicuspid valve. Any doubts? Tanvi, Naushad, Adiba, Brahmin, Sonia. Any doubts? Guys, I'm taking doubts now. Any doubts? Anything that you want to ask me? Anything that you have not been able to understand? Is that clear? Chordae tendineae is very, very, very important. Any doubts? Any doubts? Yes? So, जितनी चीजें मैं मेंशन कर रही हूं प्लीज उनको एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस एवरीथिंग इज क्लियर. लुक एट द सेप्टम. दोनों ऑरिकल्स के बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में बंडल ऑफ हिज होता है. सो इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यू हैव द बंडल ऑफ हिज. वॉट एवर आई एम टेलिंग यू इन द लास्ट मोमेंट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. डन. इसके हम बहुत सारे आज क्विजेस सॉल्व करने वाले हैं. देयर आर मेनी मेनी क्विजेस. स्पेशल लेक्चर जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेस बोली है जो इसके बाद होने वाला है. आज के कॉन्सेप्ट क्लासेस में जैसे मैं नर्व इंपल्स के बारे में बोलने वाली हूं. आई एम गोइंग टू बी टेकिंग अ स्पेशल concept class on fetal heart. There is a special concept class on fetal heart. Is that clear? Right? You want to take a snapshot of the valves? जो information लिखे, please take a snapshot. Take a snapshot, please. Please take a snapshot. Done? Perfect. Perfect. चलिए. So let's move to the brain now. Okay, so let's come to the brain now. meninges पे क्वेश्चन आते हैं. एक ये वेंट्रिकल्स पे क्वेश्चन आते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चंस. meninges, डैप, ड्यूरा, अरेक्नोइड, पाया. डायरेक्ट क्वेश्चन. जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन. थैलेमस, डायरेक्ट क्वेश्चन. रिले सेंटर. Right, all of this parts of the brain, direct questions. I'm going to teach you all of that from where direct questions are going to come in the next just about 15-20 minutes. So let's start. Brain. The size and the location. The brain measures around 1.4 to 1.6 kilograms to 20% of the body's oxygen and 15% of the blood glucose. This is a direct MCQ question at least 7 or 8 times. Direct MCQ question at least 7 or 8 times. These concept maps are very, very, very important, right? Cranial cavity, skull or the cranial cavity, cranium, इसके अंदर brain होता है. This part of the brain is called the forebrain. This part is called the midbrain, and the occipital lobes, right at the back of the brain, the pons, the variola, right? Pons, variola, medulla oblongata is the hindbrain.
See pons, medulla oblongata, cerebellum. Cerebellum is very important for balance. Write it down, at least 10 times it has come. Medulla oblongata for vital functions, breathing, respiration. लिखिए, please write this down. Medulla oblongata is for vital functions. Right, all your breathing, all your cardiac centers are all controlled by the medulla oblongata. The balance of the body, write this down. The balance of the body. For example, anybody who drinks alcohol, उसका balance बिगड़ जाता है. That person is not able to walk properly. So the balance of the body is because of cerebellum. Done. Ventricles of the brain. Now brain में और हमारी बॉडी में एक बैरियर होता है. Listen to me carefully. बॉडी में और हमारे ब्रेन में एक बैरियर होता है. That barrier is called the blood, the brain barrier. Blood और ब्रेन के बीच में there is a barrier which is called the blood brain barrier. इसीलिए उस बैरियर के थ्रू ब्लड पास नहीं होता. सो द ब्रेन हैज इट्स ओन फ्लूइड. ब्रेन के पास अपना फ्लूइड होता है. उस फ्लूइड को वो पूरी ब्रेन में सर्कुलेट करता है. उस फ्लूइड को जब वो पूरी ब्रेन में सर्कुलेट करता है, उसकी वजह से ब्रेन को न्यूट्रिशन मिलता है. राइट, सो दैट फ्लूइड फ्लोज थ्रू वेंट्रिकल्स. किसके अंदर फ्लो करता है वो फ्लूइड? वो फ्लूइड फ्लो करता है वेंट्रिकल्स में, और उस फ्लूइड का नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक सेल सिक्रीट करते हैं. चलो देखते हैं कौन बताता है. आज का क्विज बताइए, कौन बताएगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन सिक्रीट करता है? एनीबडी? कीरो इज माई ओल्ड स्टूडेंट. अपेंडिबल सेल्स. लिखिए, ये क्वेश्चन एम्स में और नीट में कम से कम 5 या 6 बार आ चुका है. रिपीट क्वेश्चन. सो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सिक्रीटेड बाय अपेंडिबल सेल्स, नॉट प्लेक्सस. अपेंडिबल सेल्स. राइट, अपेंडिबल सेल्स सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं. राइट, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये तीनों पार्ट्स हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन में. राइट, फोर ब्रेन इज दिस, सो इट हैज अ सेरिब्रम. दिस पार्ट इज द फ्रंटल लोब. फ्रंटल, दीज टू कानों के ऊपर यू कॉल देम द टेम्पोरल लोब्स. ऐसे करिए, टेम्पोरल लोब्स. ये क्या होते हैं? पेराइटल लोब्स. क्या होते हैं? पेराइटल लोब्स. और ये क्या है? द वन एट द बैक is your occipital lobe. These are occipital lobes. Right, now come to the meninges. Meninges का काम होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना. So yes, don't go anywhere. Next 10 minutes Menti quiz is coming. Meninges का काम होता है बॉडी में स्कल को प्रोटेक्ट करना. So these are the coverings जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है. The outermost covering, इसको याद करने का इजी तरीका है डैप. क्या तरीका है? डैप. आउटरमोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर. ड्यूरा मैटर के बाद एरिकनॉइड मैटर, और एरिकनॉइड मैटर के बाद पाया मैटर. चलिए, सो विद दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. डन? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. एंड आफ्टर दिस आई वांट टू सी आज मेंटी कौन टॉप करेगा 1000 बच्चों में. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर मेंटी. एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होनी है और 15 मिनट में मेंटी आ रहा है. डोंट गो एनीवेयर. राइट, सो स्किन, सबसे बाहर स्किन होगी. स्किन जो है वो स्कैल्प की स्किन होगी, तो हेयर फॉलिकल होगा. राइट, हेयर वगैरह होगा, हेयर फॉलिकल होगा. करेक्ट. एपोन्यूरोसिस इज ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह, एपोन्यूरोसिस, फैट्स वगैरह होते हैं. आपने देखा अगर सर पे चोट लग जाए, कहीं कोई गिर जाए, बहुत ब्लीडिंग होती है. राइट, सो एपोन्यूरोसिस, ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं. पेरिओस्टियम इज द कवरिंग ऑफ द बोन. फिर आएंगी आपकी मेनिंजेस. मेनिंजेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर द शॉक एब्जॉर्बिंग लेयर्स. ये क्या है? ये शॉक एब्जॉर्प्शन की लेयर्स है. ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर, पाया मैटर, ये तीनों शॉक एब्जॉर्प्शन की लेयर्स है. डोंट वरी अबाउट एनी डाउट्स. वी विल हैव अ लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन इन द इवनिंग. लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन आज शाम को होगा. डोंट गो एनीवेयर. ठीक है, चलिए. सो मेनिंजेस. राइट, आपकी स्कल की बोन है. स्कल की बोन, जो बोन्स है आपस में जॉइंट हो जाती हैं. स्कल की बोन्स जो है वो आपस में जॉइंट हो जाती है. कार्टिलेजिनस फ्यूजन हो जाता है. राइट, दे जॉइन. स्कल की बोन्स के बीच में आपस में कार्टिलेजिनस फ्यूजन ऐसे हो जाता है. आउटरमोस्ट कवरिंग्स हैं ये आपकी ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर, पाया मैटर. और इनके बीच की जो स्पेस है, सब ड्यूरल स्पेस, ड्यूरा मैटर के नीचे, सब एरिकनॉइड स्पेस, एरिकनॉइड मैटर के नीचे. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स?
सब ड्यूरल स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस, राइट। ये जो स्पेसेस है इनके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा। ये यहां पे एक बहुत बड़ा छेद होता है। अगर आप स्कल को उल्टा करके देखो, अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस में आते हो, मैंने आपको बहुत बार दिखाया हुआ है स्कल को उल्टा करके। तो जब हम स्कल को उल्टा करते हैं वहां पे एक बहुत बड़ा छेद होता है, उसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। फोरामेन मैग्नम के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड नीचे जा रही है और स्पाइनल कॉर्ड के जो वर्टिब्रल कनाल्स होते हैं, जो वर्टिब्रे होते हैं, वर्टिब्रे के बीचों बीच एक छेद होता है, सेंट्रम। उस छेद में भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। इज दैट क्लियर? डाउट सेशन में मैं आपके सारे एक्स्ट्रा डाउट्स वी आर गोइंग टू डू इन द डाउट सेशन। इज दैट क्लियर? जितने भी आपके एक्स्ट्रा डाउट्स है, ऑल द एक्स्ट्रा डाउट्स विल बी डन इन डिटेल इन द डाउट सेशन। एनी डाउट्स? राइट। सो मैं आपको क्या समझा रही थी, दैट अगर ये किसी का ब्रेन है, इसलिए ब्लैक स्लाइड रखिए सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये आपका फ्रंटल लोब होता है। फ्रंटल लोब इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, फ्रंटल लोब इज रिलेटेड टू मेमोरी। सेरेब्रल कॉलम के लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब इज रिलेटेड टू मेमोरी, फ्रंटल लोब इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। इज दैट क्लियर? फ्रंटल लोब, कान के ऊपर वाला जो लोब होता है, जो रिलेटेड टू हियरिंग होता है, उसको टेम्पोरल लोब कहते हैं। टेम्पोरल लोब। यहां वाले लोब को पेराइटल लोब कहते हैं, और पीछे वाला लोब जो विजन में हेल्प करता है उसको ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। ऑक्सीपिटल लोब हेल्प्स अस इन विजन। इज दैट क्लियर? और ब्रेन स्टेम में होते हैं आपके पॉन्स वेरियोला, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरेबेलम, जिनके फंक्शंस अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए हैं। फ्रंटल लोब और मेमोरी 100% एमसीक्यू क्वेश्चन है, 100% एमसीक्यू क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? यस एवरीबडी। चलिए, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में, राइट। सो लेट मी टेल यू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इससे रिलेटेड। यहां पे मैं एक आपको और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूं। इस पे आजकल एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आना शुरू हो चुके हैं। हमारी बॉडी में एक पार्ट होता है जिसको थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे आजकल बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आना शुरू हो चुके हैं। थैलेमस आपकी बॉडी का रिले सेंटर है, यही वर्ड आता है, और बहुत एमसीक्यूज आजकल आ चुके। दिस इज लाइक द हॉट फेवरेट ऑफ ऑल एग्जामिनर्स। तो इस साल भी इस क्वेश्चन के आने का चांस बहुत ज्यादा है। ये आपकी बॉडी का रिले सेंटर है। क्या है आपकी बॉडी का? रिले सेंटर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिले सेंटर? लोब्स ऑफ द ब्रेन पे बिल्कुल घबराइए मत। जो लोब्स ऑफ द ब्रेन है ना, उस पे मैंने एक स्पेशल कॉन्सेप्चुअल क्लास रखी है जो कल परसों में होने वाली। बिल्कुल लोब्स ऑफ द ब्रेन पे डिटेल, जिस जगह पे जहां जितना फोकस करना है, आई विल टेल यू। रिले सेंटर, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी में पास होनी है, दिस इज ऑल्सो लाइक द मिनी ब्रेन। जो भी इंफॉर्मेशन पास होनी है, कितनी बार ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो अनवांटेड होती है, बट कितनी बार ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो जल्दी पास होती है और हमारी परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। सो whenever information has to be passed to the brain has to see whether this information is of any use to me or not. So when the brain sees कि ये information मेरे काम की है, मैं इसको long term memory में store करूं या ना करूं, और ये मेरे किसी काम की नहीं है, I should throw this information. That relay, आपने रिले देखा है, वो पास द बैटन करते हैं। एक आदमी भाग कर आता है और फिर वो दूसरे को देता है, एंड देन दूसरा पास करता है और दोबारा चक्कर काटता है। सो सिमिलरली इट इज द रिले सेंटर, इट पासेस इंफॉर्मेशन, इट डिसाइड्स ये इंफॉर्मेशन पास करने लायक है भी या नहीं। उसके अलावा देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल एग्जाम में आता है, व्हिच इज एमिगडेला। एमिगडेला इज द इमोशनल ब्रेन। It is the emotional brain. Are you understanding my point? Correct? So जितने भी कई लोग होते हैं ओवर इमोशनल होते हैं, पर कई लोग होते हैं जो बहुत रूथलेस होते हैं, जिनको कोई फीलिंग्स नहीं होती। Yes, आप लोग तो स्टेज में आई एम श्योर ये चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सो द इमोशनल ब्रेन इज योर एमिगडेला। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे एमसीक्यूज आएंगे, जिनके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। इज दैट क्लियर एवरीबडी? नाउ लेट्स कम टू part which is called the ventricles of the brain. Now see, the human brain has a blood brain barrier, and because of it cells होते हैं, cells को एपेंडिमल सेल्स को एक फ्लूइड सिक्रीट करना पड़ता है। ये वो फ्लूइड है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, वेस्ट मटेरियल्स और टॉक्सिन्स ब्रेन से लेकर ड्रेन करके बाहर भेज देगा। इस फ्लूइड को हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरिब्रम मींस द लोब्स ऑफ द ब्रेन, स्पाइन मींस द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सेरिब्रम में भी जा रहा है और स्पाइन्स में भी जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में भी जा रहा है। इट्स कॉल्ड द सेरिब्रोस्पाइनल
फ्लूइड, राइट। तो हमारी ब्रेन में हॉलो कैविटीज होती हैं, हॉलो स्पेसेस होती हैं, राइट। अगर मैं ब्रेन बनाऊं, मैं दोबारा से थोड़ा सा ब्रेन बना लेती हूं। अगर मैं ब्रेन बनाऊं तो ये राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, ऐसे ही लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन होगा। तो ये दोनों के दोनों सेरेब्रल हाफ्स है, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हाफ्स। हर एक सेरेब्रल हाफ में राइट साइड अगर ये है और लेफ्ट साइड अगर ये है तो लैटरल वेंट्रिकल्स है। ये वाला हाफ मेरी बॉडी का राइट लैटरल हाफ है, ये वाला हाफ मेरी बॉडी का लेफ्ट लैटरल हाफ है। सो ये दोनों लैटरल हाफ्स में लैटरल वेंट्रिकल्स है। यहां पे दोनों लैटरल वेंट्रिकल्स मिलते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के पास और बनाते हैं यहां पे थर्ड वेंट्रिकल। यस, दिख रहा है आपको, दोनों ने मिलकर बना दिया थर्ड वेंट्रिकल, राइट एवरीबॉडी। और फाइनली फोर्थ वेंट्रिकल चला जाएगा आपके स्पाइनल कॉर्ड में, करेक्ट। सो ये राइट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, दोनों के पास लैटरल वेंट्रिकल्स, दोनों जहां मिलेंगे थर्ड वेंट्रिकल, और थर्ड वेंट्रिकल नीचे होकर जाएगा टुवर्ड्स द फोर्थ वेंट्रिकल। हॉलो कैविटीज हैं जो फ्लूइड भरता है, वो फ्लूइड कहलाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो जहां पे थर्ड सेकंड दोनों साइड वाले वेंट्रिकल जहां पे थर्ड को मिलेंगे, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है, कम से कम 10 बार। और जहां पे थर्ड वाला जो फोर्थ को आगे मिलेगा, यहां पे होगा फोरामेन ऑफ मुनरो। लिखिए फोरामेन ऑफ मुनरो, यस, फोरामेन ऑफ मोनरो। सो यू हैव द ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसकी वजह से ब्लड अपना ऑक्सीजन वगैरह लेकर ब्लड में ब्रेन में एंटर नहीं कर सकता, एंड देयरफॉर यू रिक्वायर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब आ जाइए आप पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन पे। सबसे पहले वाला पार्ट फोर ब्रेन, उसके बाद का मिड ब्रेन और पीछे का पार्ट हाइंड ब्रेन। सो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स मैंने आपको बताया, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल। फ्रंटल मेमोरी, ऑक्सीपिटल विजन, 100% एमसीक्यू क्वेश्चन। थैलेमस एक रिले सेंटर है, हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक निकलता है पिट्यूटरी, जिसको हम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस कहते हैं, जो मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम में डिटेल में करवाऊंगी। आ जाइए आप मिड ब्रेन में, एंड मिड ब्रेन में बेसिकली कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना होता है। 4 न्यूक्लियस होते हैं, जो 2 सुपीरियर कॉलिकुलाए, उन न्यूक्लियस के 2 सुपीरियर पार्ट्स, 2 इंफीरियर पार्ट्स, जो हमें विजन और हियरिंग में भी हेल्प करते हैं। और हाइंड ब्रेन में आएगा पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है उसके अंदर एक पेड़ की तरह अपीयरेंस होता है, पेड़ की तरह, इसको कहते हैं आर्बोरवीटे। ये सारे वाइटल फंक्शंस करता है, आर्बोरवीटे। आर्बोर मतलब पेड़, वीटे मतलब लाइफ, सो इसको ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्री ऑफ लाइफ। एंड फाइनली आपका सेरिबेलम, जो आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी करता है। तो ये रहे आपके ब्रेन के पार्ट्स। कैन यू सी द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन प्लीज? कैन यू ऑल सी द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन प्लीज हियर? राइट, सेरिबेलम इज रिलेटेड टू पोस्चर एंड बैलेंस। आपको दिख रहा है 2 halves? कैन यू सी द 2 halves ऑफ द ब्रेन एंड द फिशर इन बिटवीन? कैन यू सी द 2 halves ऑफ द ब्रेन? दोनों halves ऑफ द ब्रेन नीचे जाकर एक जगह पे जुड़ते हैं, अलग नहीं होते। ऐसे दोनों हाफ अलग नहीं हुए, नीचे जाकर एक जगह पे जुड़े हुए हैं। दिख रहा है आपको? आपने ओपन किया तो नीचे जाकर एक जगह पे जुड़े हुए, जिसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, जो दोनों हाफ्स को ज्वाइन करता है। 100% एमसीक्यू क्वेश्चन, 100% एमसीक्यू क्वेश्चन। दोनों हाफ्स को एक जगह पे ज्वाइन किया गया है, जिसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, राइट। और ये रहे आपके वेंट्रिकल्स, ये आपके दोनों राइट और लेफ्ट यहां पे मिलेंगे। थर्ड जाएगा आपके फोर्थ वेंट्रिकल में। कितना इजी है, 1 2 आपके लैटरल वेंट्रिकल, यहां मिलेंगे एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, जाएंगे थर्ड में, फोरामेन ऑफ मोनरो जाएगा फोर्थ में। आउटर कवरिंग कहलाएगी ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर, पाया मैटर। व्हाइट मैटर वो होता है जहां पर नर्व के ऊपर माइलिन शीथ होती है। माइलिन शीथ वाला पार्ट, माइलिन शीथ वाला पार्ट लिखिए, एक्सॉन वाला पार्ट, माइलिन शीथ वाला पार्ट व्हाइट मैटर कहलाता है। और दूसरा पार्ट जो है वो ग्रे मैटर कहलाता है। कॉर्पस कैलोसम दोनों हाफ्स को ज्वाइन करता है। बहुत इजी है अगर आप इसको ध्यान से समझोगे, राइट।
इस डायग्राम से आपके सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जितने एमसीक्यू के क्वेश्चन है सारे के सारे एक डायग्राम पे क्लियर हो जाएंगे। फ्रंटल एरिया एसोसिएशन, एसोसिएशन आप किसमें करते हो? जो आपने देखा और जो आपने सुना, जो आपने देखा एसोसिएट करते हो। अगर आप वानी मैम का लेक्चर सुनोगे तो आपको अच्छा वी बायोटॉनिक चैनल वेदांतु पे वानी मैम है, बायो पढ़ाती हैं। सो एसोसिएशन, व्हेन यू एसोसिएट अ मेमोरी दैट इज कॉल्ड द एसोसिएशन एरिया। मोटर एरिया में होता है मोटर स्पीच एरिया। यहां पे whenever somebody can speak that is their speech area, whatever you are speaking is your speech area। यहां पे आता है आपका वर्निकेज एरिया, मोटर स्पीच। कई लोग unfortunately there are some people who are not able to speak properly, they have speech defects, right? They stutter, they stammer, so they have speech defects, they are not able to speak properly, so they have a problem in the motor speech area because of which they are not able to speak properly. Smell is related to temporal lobe. Anosmia is inability to smell. Anosmia is inability to smell, right? Auditory association area, where whatever I am speaking you are able to understand। मैं जो भी बोल रही हूं आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो because of association area। I told you occipital lobe पे visual area, very important। Yes, parietal lobe is also related to speech but more related to reading। जो भी जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़कर कोई चीज समझ सकते हैं, इट इज रिलेटेड टू द रीडिंग एरिया। इज दैट क्लियर? फ्रंटल लोब्स आर द वंस, मैंने आपको पहले ही बोला था, इंटेलिजेंस, मेमोरी, यस, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंस, कॉन्सेंट्रेशन। जो अगर कोई लोग होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, राइट पीपल, साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट, नासा के साइंटिस्ट, पीपल हु आर वेरी इंटेलिजेंट हैव अ वेरी 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 गुड फ्रंटल लोब, राइट? पैराइटल लोब इज फॉर टेम्परेचर, टच, pressure and in pain involving the skin. Parietal lobe is for temperature, touch, pressure, pain of the skin. इन पे parietal lobes होते हैं। Any doubts? Temporal lobes is for hearing। मैंने आपको पहले ही बोला temporal is right above the ear। जितनी चीजें मैं मार्क कर रही हूं डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन। Temporal is for hearing, interpreting information। कोई क्या बोल रहा है आपको वो सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब इज फॉर विजुअल इमेजेस। अगर किसी को ऑक्सीपिटल लोब में चोट लगी है, दे विल नॉट बी एबल टू सी थिंग्स, उनको दिखाई नहीं देगा, राइट? सो ये रहा आपका लास्ट स्लाइड विद ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शंस, राइट? आज मजा आने वाला है मेंटी में। देखो तो सही कितनी मेहनत से स्लाइड्स बनी है, सारी इंफॉर्मेशन ऑन वन स्लाइड। सेरिब्रम, राइट, इंटीग्रेशन करवाएगा, मेमोरी, लर्निंग, स्पीच, इंटेलिजेंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको देनी है। थैलेमस को मैंने आपको पहले ही बोला रिले सेंटर है, डेटा को बोलेगा डेटा आगे जाएगा या नहीं। होम्योस्टेसिस कंट्रोल करेगा, कम से कम 20 टाइम्स क्वेश्चन आया है, 20 टाइम्स। बायोलॉजिकल क्लॉक टेम्परेचर करेगा, राइट? सुनने का काम मिड ब्रेन, ब्रीदिंग, वाइटल फंक्शन, पॉन्स, सर्कुलेशन, swallowing, digestion, all reflex actions, medulla oblongata, right? Movement, posture, balance। जितनी चीजों को मैंने रेड मार्क किया है, जितनी चीजों को मैंने रेड मार्क किया है, कोई ऐसे नहीं पढ़ाएगा आपको। जितनी चीजों को मैंने रेड मार्क किया है वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, राइट? इससे ज्यादा डिटेल में आपको नहीं करा सकते, कोई भी नहीं करा सकता। डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, राइट? जितनी चीजें मैंने मार्क करी हैं, अंडरस्टूड?